Hello, all of you. Map sessions for upcoming prelims examination. The revision that we are taking, combining both the things, conventional ones, because we do get questions, and lately there have been increase in the number of questions, which we can consider to be map based. एकदम absolute demarcation तो बहुत मुश्किल है, because anything that comes up in newspaper do comes up as map based question also. So it is difficult for me to say कि वो current affairs से था कि map based था. But then map definitely helps me to understand it. Sequentially trying to cover each of the continent and of course oceans one by one. So we are right now with Oceania, almost major part done. I have to talk about New Zealand and of course Micronesia, Melanesia, Polynesia. So carrying it forward from last session, quickly onto the screen share. Give me a thumbs up if I'm easily and clearly audible to all of you. So after giving you all the details, that goes up very clearly with the biggest constituent when it comes to Oceania, Australia. We want to take up the demarcation now with New Zealand, and I have purposefully selected this particular map because I want you to notice the Pacific Ocean का submarine topography है. पहले थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में बता देते हैं, then we'll go proceeding towards what we can see in the Pacific extension here. मुझे आपको ज़ीलैंडिया के बारे में बताना है. So I'm not getting onto the repetition mode. आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो with the available video. अब ध्यान से देखो, इधर न्यूजीलैंड को जूम अप कर दिया. Technically speaking, when I talk about New Zealand as the second biggest constituent of Oceania, I relate it to two islands. वो बहुत easily visible है, दिखाई दे रहा है. These two islands can be as per their location. Northern and Southern Island में आप इनको divide करते हो. Northern Island incorporate जो पेनिनसुला आपको जिसके साथ आप ऑकलैंड को एसोसिएट करते हैं, राइट हियर. So this is Auckland. Auckland is also designated as commercial capital of Northern Island of New Zealand, क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उसकी लोकेशन यहाँ पर है, वेलिंगटन. यू कैन इजिली सी दिस ऑन मैप. अच्छा, हम बताना क्या चाह रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखेंगे. व्हेन आई टॉक अबाउट नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, आपको जस्टिफिकेशन जो स्पेसिफिकली लेना है वो ये है that it is in northern island of New Zealand, right at this location you incorporate the active volcano of this particular continent, and we are taking it as Mount Ruapeu. बहुत important location है. It's not very tall, approximate 2700 meters from the mean sea level. Active volcanic mount है जो नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड का एक बड़ा मेजर फिजियोग्राफिक फीचर क्रिएट करता है. Apart from it, when I take up reference of this northern island, we do have got not that tall but a significant volcanic peak जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस प्लेट बाउंड्री को सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से एसोसिएट करते हैं. I'll just draw the dotted line. पहले हमें नाम लिख लेने देते हैं. So it is तारानाकी. तारानाकी को आप सेकेंड हाईएस्ट पीक एंड वोल्केनिक पीक ऑफ द कंट्री बोलते हैं. सेकेंड हाईएस्ट वोल्केनिक पीक, हाईएस्ट पीक अभी नहीं पहुंचे. तो रुआपेऊ एंड तारानाकी बोथ आर active volcanic peaks confined in northern island of New Zealand. Northern island of New Zealand में Auckland और Wellington को आप एक additional association दे सकते हो. It is via Cook Strait. So strait I have explained already in several continents that we have crossed and covered up in our revision process. So it is via Cook Strait. As I land on to southern island of New Zealand, what I'm noticing is कि southern island of New Zealand incorporate जो सबसे important feature है उसको पहले highlight करते हैं. Right here you can see the color dotted बना रहे हैं ताकि जगह बचे and we can write out the names clearly. So this is my Southern Alps. Southern Alps are young fold mountains in southern hemisphere like Andean Cordilleras. कोई comparison है नहीं size का, लेकिन फिर भी southern Alps are young fold mountain. पहली बात ये. दूसरी बात, when I take up the reference of southern Alps, ये वाला peninsula, this is a peninsula. ये peninsula को आप बोलते हो Banks Peninsula. Banks Peninsula के reference में you try to divide out the northern and the southern coast of southern island. मतलब आप इनको demarcate out कर रहे हैं. I'm putting it up as slanting line this, and now I'm putting up dotted this. Banks Peninsula separates out the coastal plains of Pacific
in northern and southern, south of Banks Peninsula, you identify the locational characteristics of Canterbury Plains. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्राइस्ट चर्च पहले इसलिए लिख दिया थोड़ा सा रुक के, क्योंकि क्राइस्ट चर्च रेडली स्पीक्स आउट जो हम बताना चाहते हैं. The most dominant agrarian region of New Zealand is Canterbury Plain, with Christchurch, the commercial capital of Southern Island of New Zealand. Christchurch की लोकेशन को आप राइट बैंक्स पेनिनसुला के साथ एसोसिएट करो. एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ क्राइस्टचर्च विद बैंक्स पेनिनसुला, उसके साउथ में जो आप पूरा कैंटरबरी प्लेन्स बता रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपली नोन फॉर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है, इसको मिस आउट नहीं करना. अब आपको जज ये करना है कि ये जो माउंट कुक है सदर्न एल्प्स का हाईएस्ट पीक है. सो रफ लोकेशन यहां पर डिमार्केट कर देते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है. माउंट कुक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यू जीलैंड. रुआपेऊ एंड तारानाकी आर एक्टिव वुल्केनो. तो अगर हम रुआपेऊ और तारानाकी को कंपेयर करें तो बिल्कुल समझ में आ गया कि रुआपेऊ इज द टॉलेस्ट वुल्केनिक पीक. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉशियस हो जाना. माउंट कुक इज द पीक ऑफ सदर्न एल्प्स, एक्टिव वुल्केनो नहीं है. एंड फाइनली वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन टेक इनटू अकाउंट, ये पूरा का पूरा, बिकॉज वी डोंट गेट इनटू द कंसिडरेशन ऑफ दैट एनलार्जमेंट, ये सब के सब फियोइड शोर लाइन है. फियोइड शोर लाइन के बारे में बात करेंगे इन मोर डिटेल्स व्हेन विल गेट टू मैप ऑफ यूरोप, व्हिच इज वेरी लाइकली टुमारो. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फियोइड शोरलाइन, नॉर्वेजियन शोरलाइन को बड़ा मेजर रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. पूरा सदर्न एल्प्स के साथ जो एसोसिएटेड डोमेन है, ये भी एग्जाम्पल ऑफ फियोइड शोरलाइन है. डालमेशियन नहीं है, फियोइड शोरलाइन है. अच्छा, एक और चीज बिफोर आई चेंज ओवर द मैप, थोड़ा और जूम अप कर दिया. I hope all of us are noticing, purposefully changing the color. ये रफली ट्रायंगुलर आइलैंड हम सबको दिखाई दे रहा है. इस ट्रायंगुलर आइलैंड का नाम है स्टीवर्ड आइलैंड. दिस इज ऑल्सो पोलिटिकली न्यूजीलैंड, नो डिनाइल ऑफ रेफरेंस देयर. और ये जो आपका स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को आई एम राइटिंग इट्स नेम हेयर, फोविक्स. तो आप जब प्रिंसिपल आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड की बात करो तो नदर्न आइलैंड वाया कुक स्ट्रेट, सदर्न आइलैंड वाया फोविस स्टेक, स्टीवर्ड आइलैंड के बारे में बात करेंगे. नदर्न आइलैंड इज मोर नोन फॉर एक्टिव वुल्केनोस. Southern islands are more identified with a Youngfold Mountain, Fiord shoreline, Canterbury Plain, with Christchurch, the commercial capital of Southern Island of New Zealand. अच्छा, बात यहां पर खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते. As I take the reference of map of New Zealand, I need to notice. अब यहां ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया. जूम आउट करके क्या दिखाई दे रहा है? We are noticing very clearly and very evidently. I think red color will be good. ये आपको पूरा का पूरा सबमरीन कंस्ट्रक्ट दिख रहा है. एंड यू कैन नोटिस दैट दिस सबमरीन कंस्ट्रक्ट इज सिग्निफिकेंटली बिग. ये मैप में पूरा दिख भी नहीं रहा, एंड आई कैन नोटिस इट्स वेरी ब्रॉड एंड बिग. ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से पहले यहां देखो, फिर वापस इस मैप पर आते हैं. दिस इज जिलैंडिया. अच्छा, अब जिलैंडिया को जब आप देखते हैं, विच इज बीन कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिनेंट विच इज प्रिंसिपली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो आपको यहाँ पर नदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड स्टीवर्ड आइलैंड के बारे में तो बता ही दिया. सो यू आर अवेयर ऑफ इट. अब इसी के रेफरेंस में जिलैंडिया की लोकेशन को देखते हैं. आई एम मेकिंग माई मार्कर थिकर. जिलैंडिया इज कंसिडर्ड टू बी दिस. ये बाउंड्री को बहुत ध्यान से विजुअलाइज कर लीजिए. आपके मैप में ओशनिया दिया हुआ है, आप वहां पर रफ डिमार्केट कर लो. Whatsoever way it is easier for you to retain it out. I'm just giving you leads that is important for you to justify. इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम इसके बाद इमीडिएटली आपको एंटार्क्टिका की तरफ ले जाते हैं, ताकि सदर्न ओशन का डोमेन भी क्लियर हो जाएगा. केयरफुली नोटिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग यू टू, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन in no association to the features right here. तो हमने जिसको डिमार्केट कर दिया उसको कह रहे हैं आप जिलैंडिया. जिलैंडिया का जो सरफेस एक्सप्रेशन है वो तो सिर्फ न्यूजीलैंड है. न्यूजीलैंड का मतलब नदर्न आइलैंड, सदर्न आइलैंड एंड स्टीवर्ड आइलैंड है. अब आपको क्या नोटिस करना है, उसको जज आउट करते जाओ. इस पूरे रिज को, एंड आई एम पर्पसफुली मेकिंग इट लाइक दिस, और इस पूरे रिज को, ये सबमरीन रिजेस हैं. You identify these ridges in accordance to the features that are there.
सो इसको हम बोलते हैं कैलिडोनिया, कैलिडोनियन सबमरीन रिज, और इसको बोलते हैं लॉर्ड हो। लॉर्ड हो प्लाट्यू भी बोला जाता है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली ब्रॉड एज यू ऑल कैन सी। अच्छा, अब जो ये आपको एक बटरफ्लाई शेप का टुवर्ड साउथ दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड द आइलैंड्स दैट आई एम मेंशनिंग। यू हैव चारथम, आई होप यू हैव नोटिस देम। तो ये चारथम कैंपबेल प्लाट्यू कहिए, लॉर्ड हो प्लाट्यू कहिए, कैलिडोनियन प्लाट्यू कहिए, प्लस अप्लाई न्यूजीलैंड। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड, Zealandia, the new discovered continent as claimed by scholars, have only New Zealand on the water surface. Maximum of it is submerged, and that submerged correlates with submarine features or submarine topography that includes A. Lord Howe, B. Caledonian Ridge, C. Campbell Ridge, and D. Chartham Ridge and Campbell Ridge. These combines to make Zealandia. Zealandia को जब आप justify करते हैं तो you cannot miss out on this. So I'll be emphasizing on this. I'll be purposefully using green color, which will be, I think, evident here. No, it is not much. So let me use yellow, and ये ऐसे जानबूझकर shade out कर दे रहे हैं। इसको आप बोलते हो कैलिडोनियन बेसिन। कैलिडोनियन बेसिन भी जो है इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ जिलैंडिया। तो जो डीप ब्लू कलर, जो डीपर लोकेशन दिखाई दे रहा है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज प्रिंसिपल कंस्ट्रक्ट इज दिस। जिलैंडिया का सरफेस रिप्रेजेंटेशन सिर्फ न्यूजीलैंड है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको बहुत एविडेंटली नोटिस करनी है, और इसलिए ये वाला मैप ओपन करा है आपके सामने, आई चेंज माई कलर पर्पसफुली टू रेड, लेट इट बी। अब ये ध्यान से देखोगे, ये वाला रिज, ये एक्चुअली कंबाइन अप करते हैं। इस रिज का नाम हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं मैक्वेरिक बेलेरी रिज। मैक्वेरिक बेलेरी रिज पर अभी आपको पॉलिटिकल मैप पर ले जा रहे हैं, इज नॉट द पार्ट ऑफ जिलैंडिया। बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ जिलैंडिया। जिलैंडिया में कौन कौन से सबमरीन कंस्ट्रक्ट आ रहे हैं? लॉर्ड हो रिज आएगा, कैलिडोनियन रिज आएगा, कैंपबेल एंड चारथम रिज आएगा। न्यूजीलैंड उसका कंस्टिट्यूएंट है, वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया। मैक्वेरिक बेलेरी रिज को आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस, ऑफ कोर्स लॉर्ड हो आइलैंड के बेस पर ही तो नाम है ना लॉर्ड हो रिज। सो लॉर्ड हो आइलैंड, अभी हम 1 मिनट में लेकर जा रहे हैं आपको आइलैंड्स के नेम वाले मैप पर। 2 मिनट के लिए रुको। जिलैंडिया का डिमार्केशन क्लियर हुआ। मैक्वेरिक बेलेरी रिज को हम ऐसे करके रेल ट्रैक बना देते हैं अपने इस डायग्राम में, ताकि आप उसको बहुत क्लियरली विजुअलाइज करो। अब जरा दोबारा से अपने बेस मैप पर जा रहे हैं 1 मिनट में, जल्दी से देखो और समझो, क्लैरिटी आप डेवलप करेंगे राइट हेयर। अब हम दोबारा से अगर इस पॉइंट पर मार्क करने की कोशिश करें तो आई थिंक ऑल ऑफ यू विल इजिली अंडरस्टैंड। ये रहा, कैन ऑल ऑफ अस विजुअलाइज मैक्वेरिक बेलेरी रिज ऑन दिस पर्टिकुलर मैप? वी ऑल कैन। यही मार्क करा था ना अभी थोड़ी देर पहले। और ध्यान से देखेंगे, फीजी, तोंगा, और नाम नहीं लिखा हुआ तो हम लेबल कर देते हैं करमेडिक। अपने स्कूल एटलस में नाम देखिए, फीजी, तोंगा, करमेडिक are the names of the islands that are located on Macquarie Beleri Ridge, are the islands that we identify on Macquarie Beleri Ridge, which is not the part of Zealandia. Be very clear. और जब हमने आपको ये वाला बाउंड्री बना कर दिया था, you can see it now, I'm quickly re-highlighting it. आपको समझ में आ गया that we demarcated Zealandia there. Give me a confident go ahead, all of you. जिलैंडिया को बिल्कुल भी तोंगा करमेडिक रिज से नहीं मिस इंटरप्रेट करना। इट इज नॉट रिलेटेड टू जिलैंडिया, ये जिलैंडिया के बियॉन्ड जाता है। आई थिंक इट इज कंफर्टेबल। अच्छा, जैसे ही आप तोंगा करमेडिक रिज या मैक्वेरिक बेलेरी रिज के बारे में बात करते हैं, you very clearly take into consideration what is identified as, back to this map, because it is very easily evident there. So notice, इसी को बोलते हैं, you can see it and you can see it as a very deep blue color. ये दिख रहा है ना, ये सब के सब सबमरीन ट्रेंच हैं, नाम है तोंगा एंड करमेडिक ट्रेंचेस।
जैसे ही आपने आइलैंड के नाम पिकअप कर लिए अपने आप ही आसान होंगे। एंड व्हेन यू ट्राई टू जस्टिफाई द टोंगा करमेडेक ट्रेंच एंड डिमार्केट आउट द आर्क टुवर्ड्स नॉर्थ, ये सारे के सारे आर्क्स आपको एक्टिव वोल्केनिक साइट्स दिखाते हैं फिजी के वेस्ट में, जो कि ज़िलैंडिया से रिलेटेड नहीं। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू। न्यूजीलैंड गिव्स मी द जस्टिफिकेशन ऑफ द फिजियोग्राफिक डोमेन that incorporate Northern Ireland, Southern Ireland, and Stewart Island as the prominent constituent. New Zealand is the only dominant surface projection part of Zealandia, only major. बाकी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे लॉर्ड हो है, जैसे कैलिडोनिया है. These are the islands named on which the ridges are there. Okay, न्यूजीलैंड का जो फिजियोग्राफिक डोमेन है उसको भी जज कर लिया. Now we want to take up the additional information right here. There cannot be more easier demarcation to this confusing location on the map of world. अब आपको इसमें important latitudes भी दिखाई दे जाएंगे, longitude भी दिखाई दे जाएगा. हम quickly highlight करते जा रहे हैं, notice करते जाओ one by one. So first I want to highlight equator. So equator को हमने ऐसे highlight कर दिया, आपको beginning of this continent में भी समझा दिया था कि जब आप इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, इक्वेटर के नॉर्थ में मेलानेशिया आएगा, साउथ में नॉर्थ में माइक्रोनेशिया आएगा, साउथ में मेलानेशिया आएगा. इक्वेटर के नॉर्थ में माइक्रोनेशिया, और इसी के कंटिन्यूटी में इसको ऐसे मार्क करते हैं. इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सेशन ऑफ आवर्स वी डिड डिमार्केट. अच्छा, यहाँ पर पूरा ट्विस्ट टर्न नहीं दिया हुआ, फिर भी ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है. इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड नहीं होता, थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न आता है. आई होप यू आर रिकॉलिंग, किरीबाती के लाइन आइलैंड के लिए हमने ये ट्विस्ट टर्न दिया था. अगर आप इसको जस्टिफाई करें तो पहली चीज को डिमार्केट करोगे, दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर का जब आपने डिमार्केशन ले लिया, तब आप पिकअप करो नेक्स्ट लैटिट्यूड. अब नेक्स्ट लैटिट्यूड का नाम क्या है? लेट इट बी ब्लैक इन कलर. इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्रीज साउथ. इसको जब आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपके लिए अब लोकेशनल क्लैरिटी आसान हो गई. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर द क्लैरिटी. ये 0 डिग्रीज है आपका. यहां पर तो आप 180 डिग्रीज लिख सकते हो, बट जो ट्विस्ट टर्न आया इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन. आई होप इट इज कंफर्टेबल. अब लोकेशन को क्विकली पिकअप करेंगे. Micronesia is in eastern and northern hemisphere. The Micronesian islands are small, fragmented, largely uninhabited islands. Micronesian islands by default includes the federated states of Micronesia. It is Northern Marianas, Guam, and Marshall Islands as the other constituents, which are part and parcel of US territories. So be very cautiously identify that when I talk about Micronesian islands, we are taking up federated states of Micronesia, Northern Marianas, Marshall Islands, and of course Palau. Palau एक अलग से independent island region है. So you can demarcate these constituents. जब किरीबाती की बात करते हो तो वहां पर आपको जज करना है that Kiribati is considered to be the constituent relating to Micro and Melanesia का cusp. किरीबाती के कुछ आइलैंड माइक्रोनेशिया में पड़ते हैं, कुछ टेक्निकली तो पॉलिनेशिया में है, लेकिन आप उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रखने के लिए अपना ट्विस्ट टर्न करते हो. एंड दैट किरीबाती आइलैंड का नाम क्या है? लाइन आइलैंड. तो लाइन आइलैंड को अपने दिमाग में हमेशा रखना. इन द सदर्न हेमिस्फीयर द मेजर बेंट इन द इंटरनेशनल डेट लाइन इज बिकॉज ऑफ लाइन आइलैंड, दैट इज किरीबाती. अच्छा, अब जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करके आप सदर्न हेमिस्फीयर में आए हैं, remind yourself of this. We learned about Bougainville in the last session. You know Solomon Island very well. So आप अगर पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, अभी थोड़ी देर पहले आपने मैक्वेरिक बेलेरी रिज पर फिजी एंड ज़िलैंडिया पर कैलिडोनिया रिज को डिमार्केट करा. I think names becomes easier. They all represent Melanesian island. मेलानेशियन आइलैंड्स साउथ ऑफ इक्वेटर हैं. मेलानेशियन आइलैंड साउथ ऑफ इक्वेटर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. पपुआ न्यू गिनिया बहुत अच्छा एग्जांपल है. सोलोमन इज वेरी गुड एग्जांपल. बोगनविली, द न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, रेफरेंडम पास.
अगर आप उसका जस्टिफिकेशन लेंगे एज पॉलिटिकल सीडिंग, सो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू क्रिएट आउट दैट पॉलिटिकल ट्विस्ट ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। अब नोटिस करो ये वाला बेल्ट, आई वॉन्ट टू बी विद अ वेरी डिफरेंट कलर। अब जो आपको टेक्निकल डिमार्केशन लेना है वो ये है, इसलिए आपको बताया कि लाइन आइलैंड के साथ एक ट्रांजिशनल डोमेन रहता है। लाइन आइलैंड इज टेक्निकली पॉलिटिकली किरिबाती, किरिबाती इज माइक्रोनेशियन आइलैंड। माइक्रोनेशियन आइलैंड जो साउथ ऑफ इक्वेटर भी स्प्रेड कर रहा है, तो इस तरह के आइलैंड के साथ थोड़ा सा स्टेटमेंट में कॉशियसली डिमार्केट करना पड़ेगा। I want you to notice Polynesia, and as you notice Polynesia, please don't miss to see Cook Island. It politically belongs to New Zealand. French Polynesia कई बार बात कर चुके, 12 टाइम जोन है, because French territories are having a big demarcated territorial stretch. Pitcairn Island that politically belongs to United Kingdom. ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड पर जब आप पहुंच जाते हो ना तो यू आर हैविंग द पॉलिटिकल डोमेन ऑफ चिली। सो यहां पर लिख देते हैं इनके नाम ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कुक आइलैंड इज न्यूजीलैंडिक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, दिस इज यूनाइटेड किंगडम, ईस्टर इज चिलियन आइलैंड, एंड प्लीज डोंट मिस टू सी हवाईयन आइलैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। केयरफुल एंड वेरी केयरफुल, पॉलिनेशियन आइलैंड्स में हवाईयन आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब पॉलिनेशियन आइलैंड के लिए नदन सदन हेमिस्फेयर का डिवाइड एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉलिनेशियन आइलैंड्स आर कन्फाइंड इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर दे आर लोकेटेड ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। जब आप ओशनिया की बात करो तो आपको कभी भी मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को मिस नहीं करना चाहिए। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहां बहुत आराम से पहचान रहे हैं, एंड यू हैव लर्नड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी लर्नड अबाउट दीज टू कंट्रीज, इंक्लूडिंग देयर आइलैंड एक्सटेंशन। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। तो ईस्ट और वेस्ट का थोड़ा सा डोमेन को क्लैरिफाई करके रखेंगे, बिकॉज व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ न्यूजीलैंडिक आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई एनकाउंटर इज कि हमें उसकी लोकेशनल क्लैरिटी क्लियरली नहीं समझ में आती, और ये सारे लोकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इंपॉर्टेंस इज बिकॉज ऑफ richness of the critical minerals, importance because of Indo-Pacific region becoming significant. So you have to be comfortable with the locational clarity altogether. As we are somewhere intruding, South America भी करा, Africa continent भी ले लिया, Oceania भी अब pick up कर लिया, so we want to go further south and quickly pick up the uninhabited continent of the world, Antarctica, and quickly understand its characteristics feature. उसके बाद जाते हैं फिर यूरेशिया की तरफ। सो आई टेक दिस एज माय सपोर्टिव मैप। तो थोड़ा सा जूम अप कर देते हैं, आप फटाफट से अपने मैप को अपने सामने खोल लीजिए, बिकॉज व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ एंटार्क्टिका, अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ इसलिए इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग अप ऑफ द आइस, new territorial claims, new reserves that has been justified. I hope all of us are aware of the fact that crude oil तो बिल्कुल रूल आउट किया जाता है एंटार्क्टिका में, लेकिन एंटार्क्टिका का जो सबसे richest reserve है वो है water, of course in a frozen form. So you have to justify that when world is reeling under acute water crisis, wherein we are at the verge of experiencing hydrological drought, एंटार्क्टिका का इंपॉर्टेंस अपने आप ही उस डोमेन में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाट आर द कन्वेंशनल थिंग्स दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ एंटार्क्टिका बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स? तो सबसे पहले तो ये जज करिए, हमें ये वाला व्यू देखने की आदत नहीं है, इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको जज आउट करनी है वो ये है, लेट मी यूज रेड कलर एंड अ थिकर वन, तो जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा। ये बना मेरा, आई एम गोइंग वेरी रफ, तो थोड़ा सा ब्रोकन भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने बना दिया है 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड, एक रिंग बनाया, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने बना दिया साउथ पोल, माने ये हो गया मेरा 90 डिग्रीज साउथ। इफ यू ट्राई टू सी 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज साउथ, अब इन बिटवीन पर्पसफुली ब्लैक कलर से हम एंटार्कटिक सर्कल को कंप्लीटली ड्रॉ करते हैं, बिकॉज इसकी हमें रिक्वायरमेंट है।
66.5 degrees south. ध्यान से देखेंगे 66.5 degrees south do marks its traversing from Antarctica. ये बहुत बड़ा मिथ है कि 66.5 degrees south जो है वो एंटार्क्टिका को टच नहीं करता, इसलिए आपके सामने हाईलाइट कर दिया. एंटार्क्टिक सर्कल do have its relation with land mass of Antarctica. खाली सदर्न ओशन में नहीं है, दोनों ही साइड में टच कर रहा है. व्हाट इज मेंट बाय दोनों साइड? तो दोनों साइड को जज करने के लिए एकदम कलर चेंज करते हैं, बहुत थिक मार्कर लेते हैं और ड्रॉ आउट करते हैं. ये हमने लाइन बनाया टिल साउथ पोल, ये है आपका 0 डिग्रीज, and then I'm going here, it is your international date line. तो ये मेरा 180 degrees longitude है और ये मेरा 0 degrees longitude है. जैसे ही आप इनको डिमार्केट करते हो, थोड़ा सा जूम आउट कर दे ताकि 180 भी दिखे. जैसे ही आपने इसको डिमार्केट आउट कर लिया, नोटिस करो लिखा हुआ है मैप में, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. ये है आपका ईस्टर्न एंटार्क्टिका और ये है आपका वेस्टर्न एंटार्क्टिका. आर यू मेकिंग सेंस विद इट? Eastern Antarctica and Western Antarctica. East Antarctica and West Antarctica taking into reference the Greenwich, east of Greenwich and west of Greenwich. I hope you can notice this right here. Okay, अब थोड़ा सा zoom out करें, कुछ technical facts को pick up करो जल्दी जल्दी से. Can I easily see that when I talk about our Antarctic circle in Western Antarctica is marking up its traversing only via this particular peninsula. So इसको थोड़ा सा highlight out करके नाम लिख देते हैं. इस पेनिनसुला को हम बोलते हैं ग्राहम लैंड पेनिनसुला. I write the name. Graham Land Peninsula is the peninsula with which I correlate in Western Antarctica, traversing of Antarctic Circle. पहला पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट, Graham Land Peninsula is the peninsula with which we are correlating the proximate most location of Antarctica to the habited world, South America. अगर आप इस ग्राहम लैंड पेनिनसुला के साथ ये साउथ ओर्नकी आइलैंड देखें यूनाइटेड किंगडम का, यू आर राइट देयर विद योर टेरा डेल फ्यूगो प्रॉक्सिमेट लोकेशन. सो ग्राहम लैंड के साथ ये दो चीजें सफिशिएंटली जस्टिफाइड हैं. Added to it, when you are learning Graham Land, don't miss to see out that it is Graham Land Peninsula that is demarcating Weddell Sea from Bellingshausen Sea. Belling Sea भी बोलते हैं, Bellingshausen Sea भी बोलते हैं. इनको marginal water bodies of Southern Ocean कहेंगे. You have to justify that they both are west of Greenwich. They belong to Western Antarctica. इसके आगे अगर मुझे वेस्टर्न एंटार्क्टिका में और कुछ बात करनी है तो थोड़ा सा जूम अप करके बात करेंगे. नोटिस इट, मेरे पास एक अलग मैप है, हम उसमें दिखाते हैं उसको, लेकिन अभी के लिए माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन या विंसन मैसिव is the highest peak that I identify for this particular landmass, and I am correlating it right there with Western Antarctica. तो आप ये वाला पॉइंट भी इजिली जस्टिफाई कर सकते हो विद दिस. एंड अमंग द बिग शेल्व्स, अभी शेल्व्स के बारे में दोबारा से बात करेंगे, बट नोटिस कर लो, अमंग द बिग शेल्व्स ऑफ एंटार्क्टिका, आई होप वी ऑल आर नोटिसिंग, रोने आइस शेल्फ कंप्लीटली बिलोंग्स टू वेस्टर्न एंटार्क्टिका. तो वेस्टर्न एंटार्क्टिका को आप बहुत आराम से डिमार्केट आउट कर सकते हो एज अ स्मॉलर वेस्ट ऑफ ग्रीनविच पार्ट with Graham Land Peninsula, a massive Vinson Massif, the tallest peak, and of course the Ronne Ice Shelf. Ross Ice Shelf का पार्ट जा रहा है, अब उसको भी नोटिस कर लो before I go anywhere else. थोड़ा सा मार्कर को थिक कर देते हैं तो डिमार्केशन थोड़ा इजिली विजिबल हो जाएगा. So among the two big ice shelves का एक और अलग से मैप दिखाएंगे आपको. Among the two big ice shelves of Antarctica, एक रोने और एक रॉस. रोने पूरा गया वेस्टर्न में, रॉस जो है वो मेजरली वेस्टर्न में है, माइनरली गोज टुवर्ड्स ईस्ट. एंड प्लीज डोंट मिस टू सी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स.
ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन्स जो हैं ये ट्रेवर्स आउट करते हैं फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न एंटार्क्टिका. दे बाय डिफॉल्ट इनकॉर्पोरेट दैट टॉलेस्ट पीक दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो वेस्ट में आप इतनी चीजों को जज करके उसको लीव आउट कर सकते हो. ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं. जब आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हो तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है दैट वी आर हैविंग ईस्ट having its shoreline precisely been Indian Ocean के साउथ में आपको दिख रहा है Indian Ocean right here. You have got the tropic and Antarctic circle marking up its touching, almost creating the shoreline of East Antarctica. East Antarctica के साथ आपको कुछ important locations को जज आउट करने हैं. ध्यान से नोटिस करते जाइए, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, पहला चीज जो आपको ये नोटिस करना है वो है साउथ मैग्नेटिक पोल. साउथ मैग्नेटिक पोल. साउथ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड इन ईस्टर्न एंटार्क्टिका. दिख गया साउथ मैग्नेटिक पोल. साउथ मैग्नेटिक पोल के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है. इट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2800 meters above the mean sea level. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिस करेंगे. एंड कम से कम 1200 किलोमीटर्स इन लैंड है, वो तो दिखाई दे रहा है. सो साउथ मैग्नेटिक पोल इज इन ईस्ट एंटार्क्टिका. साउथ ज्योग्राफिकल पोल तो बाय डिफॉल्ट विल बी एट द सेंटर एट द ट्रांजिट व्हेन यू आर टेकिंग अ ग्रीनविच एंड इंटरनेशनल 180 degrees लॉन्जिट्यूड. अच्छा, दूसरी चीज जो आपको यहां नोटिस करनी है वो है वॉस्टॉक ऑफ रशिया. We know that Antarctica do not incorporate any permanent human settlement. But when it comes to this fifth largest continent of the world, when it comes to this driest, windiest continent of the world, when it comes to this coldest continent of the world, do remember it was Vostok where we had on record temperature of -89 degrees Celsius. मतलब अभी तक ऑन रिकॉर्ड में जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो वॉस्टॉक में हुआ है. वॉस्टॉक is any other exploration center that you can see which is right there. You can notice there are so many to be seen, but इसका importance क्या है? इसका importance है on record coldest temperature. तो it has been designated as the coldest spot of the world. Interestingly, not south pole, not south magnetic pole, उसके proximate location में. ये myth है. I think I have given you this repeated times. I'm repeating. Australia, Oceania is not the driest continent. Antarctica is the driest continent of the world, and it is also called windiest. जब आप इस windiest continent की बात करते हो ना, तो यहाँ diamond dust एक बड़ा interesting fact आता है. Just write it here. Diamond dust phenomena relates to which of the continent? ये एक बड़ा important domain है that you can have on in the question paper. Diamond dust का simple मतलब है you are near the magnetic pole. As you are aware of, we are having auroras near the polar region. So diamond dust का मतलब सिर्फ ये है एक optical phenomena जो develop होता है because this is the windiest continent which is covered with snow and ice. 98% of Antarctica is covered with snow and ice. And when I take up the reference of those ice crystals that are being blown away by strong winds, they tend to create a very clear, एक spectacular optical phenomena जिसको आप diamond dust बोलते हैं, which sparkles during 6 continuous months of day in this particular location. Polar area में हो 6 continuous months of day and 6 continuous months of night होगा by default. अच्छा, डायमंड डस्ट एक इंपॉर्टेंट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. थोड़ा सा जूम अप करेंगे. जब आप ईस्टर्न एंटार्क्टिका की बात करते हो तो आप इंडिया के तीनों, एक तो खैर अब बेस सेंटर के तौर पर ही काम कर रहा है, बट एनी केस आप इंडिया के तीनों सेंटर्स को नोटिस कर सकते हो. ध्यान से देखते जाओ. राइट हेयर वी कैन नोटिस मैत्री. ये मेरे मैप में दिया हुआ है, ठीक है. मैत्री इज द ऑपरेशनल स्टेशन. इसी के बिल्कुल नॉर्थ में राइट हेयर वी हैव दक्षिण गंगोत्री. आई एम राइटिंग DG. सो दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री gives us the reference very clearly of Indian research station. I'm just coming on to the fact Dakshin Gangotri have been abandoned as the research center for sure.
and it is now working as the supply base for Indian research centers. और जो आपको एक और important location operational judge करना है वो यहाँ पर है, चाइनीज ये एमर आइस शेल्फ के राइट हेयर, हमारे मैप में दिया नहीं हुआ है इसलिए हम मार्क कर रहे हैं, आपके स्कूल एटलस में अगर दिया है तो देख लो, नहीं दिया है तो प्लीज मार्क इट अप, दिस इज भारत। सो नोटिस करेंगे कि जब हम ईस्टर्न एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं तो हमारे दो ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर भारती एंड मैत्री आर राइट देयर, दक्षिण गंगोत्री which is now not operational, it has been abandoned as a research center but is working with the supply domain, is right there in eastern Antarctica. Eastern Antarctica के साथ आप associate कर रहे हो Vostok, the coldest place, south magnetic pole. साउथ मैग्नेटिक पोल लगभग 2800 मीटर अबव द मीन सी लेवल है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जज आउट करना चाहिए। रॉस आइस शेल्फ का डोमेन आपको बता दिया, इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वाटर। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टिंग पेनिनसुलास थोड़े से कम है इसलिए आपको बड़े आराम से दिखाई दे रहा होगा दैट वी आर हैविंग less of say projecting peninsulas and thus the marginal water, तो वो marginal water का बल्क यहाँ पर बहुत कम है। yes, you can easily notice वेस्टर्न में ही रॉस सी नाम आसान है, रॉस आइस शेल्फ से एसोसिएट कर सकता है। अब मुझे आपको इसके अलावा क्या बताना है, ध्यान से देखेंगे। आई टोल्ड यू आई विल बी टॉकिंग अबाउट द आइस शेल्व्स सेपरेटली, तो आपके लिए हम सिंपली 1 and 2 मार्क कर रखा है, यू हैव नोटिस्ड इट, सो काइंडली नोट इट एंड नोट इट वेरी केयरफुली, क्योंकि एंटार्क्टिका में अगर कोई मेजर कंटेम्पररी एज आया है, that is all because of the breaching of or the breaking up of the ice shelf. I'm coming on to that map. So which are the principal ice shelves that you can see with Antarctica? So we are aware of them. I have already labeled it. It's Ross here, it's Ronne here. You can easily identify they are the biggest one. It is with Emer that I already asked you to identify our youngest functioning research center, Bharati, located. So you can justify them. अच्छा, जब साइज वाइज बात करें तो इतना बड़ा साइज में नहीं आता एज रॉस एंड रोने, बट राइजर लार्सन आइस शेल्फ ये रहा, तो याद करोगे ये आपका वेडल सी है ना, वेडल सी से जा रहे हैं आप, यू आर इन द वेस्टर्न पार्ट, अब वेडल सी से थोड़ा नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। अच्छा, एंटार्क्टिका के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप एंटार्क्टिका में जब खड़े हो तो आपका कोई भी लोकेशन साउथ पोल से इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ही होगा, आपके पास कोई टाइम जोन नहीं है एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका के ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर लोकेशंस, यू नीड टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हर लोकेशन को ज्योग्राफिक साउथ की तरफ से देखना है। तो अगर मैं ज्योग्राफिक साउथ पोल पर खड़ी हूं तो राइजर लार्सन भी मेरे नॉर्थ में है, रॉस भी मेरे नॉर्थ में है, रोने भी मेरे नॉर्थ में है, एनेमेर भी मेरे नॉर्थ में, बिकॉज एवरीथिंग फ्रॉम हियर गोज नॉर्थ। आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस। सो आइस शेल्स में राइजर लार्सन आइस शेल क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, कुछ लिख रखा है ताकि आपका टाइम खराब नहीं। क्रैक्स इन द आइस शेल्स कॉल्ड चार्म्स, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, क्रिएटिंग आउट द कंटेम्पररी एज इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। ये जो आपका राइजर लार्सन आइस शेल्फ है जिसको आपको प्रीवियस मैच में दिखाया, उसी को थोड़ा सा आगे देखकर देखेंगे। वी हैव गॉट 4 डिफाइंड क्लास्म दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड हियर, एंड दीज क्लास्म इज आइडेंटिफाइड टू बी ऑफ अ सिग्निफिकेंट साइज, एंड दैट इज द रीजन वी आर हैविंग melting up of the ice as ablation leading to the rise in the mean sea level. नॉर्थ ब्रंट, वेस्ट ब्रंट, ये सारी चीजें जो है वो रिलेटिव लोकेशन है राइजर लार्सन आइस शेल्फ की। एंड चार्म्स जिसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली द क्रैक्स दैट इवॉल्व्स, बिगर क्रैक्स that evolves in the ice shelf. I don't think you need to remember the names of them, but you should be aware of that we are having important cracks that has evolved, and this is the reason that for last 2 years Riser Larsen ice shelf is in newspapers compared to Ronne and Ross, जो कि definitely much bigger ice shelves हैं। And please note, this is the location that I have asked you to see already. ये location आपने already देख लिया। If I go back to my base map one more time, I have to take up the reference of that Antarctica is considered to be
a non-sovereign region, and you all must be aware of the Antarctic Treaty that is to be applied. And when I take up the reference of Antarctic Treaty, what you need to understand very clearly is that some countries surely are having some rights that are being claimed. But when I talk about this Antarctic Treaty 1961 onwards, it's a non-sovereign region and has to be utilized for the peaceful exploration and etc. purposes. अब जैसे ही आप फाकलैंड आइलैंड फ्रॉम साउथ अमेरिका को रिकॉल करें, या आप लोकेशन ऑफ अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, फ्रेंच टेरिटरीज का लोकेशन एज फ्रेंच पोलिनेशिया जज आउट करो, it becomes easier for you to justify. And I want to create out the list here. These 6-7 countries actually now, United Kingdom को include करके, there are 7 countries that are having their claims on Antarctic territory. अब ये कौन कौन से हैं, slowly justify करो. अगर हम लिखते हैं अर्जेंटीना, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर हम लिखते हैं चिली, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? आप राइट यहां पर हो ना, ग्राहम लैंड पेनिनसुला, अर्जेंटीना एंड चिलियन टेरिटरी का प्रॉक्सिमेट लोकेशन. Apart from it, when I say United Kingdom, I am asking you to recall Falkland Island का proximity. That by default gives you the justification of United Kingdom. Norwegian territories as a Norwegian island. कौन सा Norwegian island? It's called Bouvet Island of Norway, which is right there in Southern Ocean. It is correlated with your southern extension of Atlantic Ocean. आप जरा मैप ऑफ साउथ अमेरिका ओपन करेंगे, आपको फटाफट दिखेगा, नहीं तो हम अब आपको थोड़ी देर में बताते हैं. फ्रांस आपको पहले ही बता दिया. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आई थिंक गोज बाय डिफॉल्ट. ये तो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका एक्सटेंशन ही आपको दिखाई दे रहा है इस एरिया में, और बाकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ कोरिलेट कर रही हैं. नॉर्वेजियन बोवेट आइलैंड, यूनाइटेड किंगडम फाकलैंड आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया are the prominent representatives that makes these countries claiming Antarctic territory. Otherwise, Antarctica is non-sovereign. It is identified with no time zone. It is related very clearly with 98% of ice cover. I have already talked about that. We have got Vinson Massif as the important highest peak altogether. Acha, when we talk about the characteristics of this particular ice covered continent, permanent habitations not there, barring the exception of some important types of flora and fauna. Krill UNEP के बहुत major radar पर है. Penguins by default are very significant constituent that can be taken up here. कुछ खास नया important domain पर नहीं. So you can take up Antarctica with this. Do always remember, Antarctica के साथ जब आप बाउंड्री क्रिएट करो, तो पहली लेक्चर में आपको समझाया था 50 डिग्रीज साउथ के बियॉन्ड आप सदर्न ओशन मानते हैं. तो इसलिए जब हमने आपको 60 डिग्रीज लैटिट्यूड को डिमार्केट करके मार्जिनल वाटर्स की बाउंड्री डिमार्केट कर दी, चाहे वो रॉस सी है, चाहे वो वेडल सी है, you need to understand that they will be marginal arms of Southern Ocean. They will be marginal arms of Southern Antarctic Ocean. And rest, as I said, is defined as Western and Eastern, but truly, sab ke sab is towards north from South Pole. I think that is sufficient for Antarctica. Antarctica, the prominent most, 5th largest and prominent most resource, water resource, 98% of the area under ice. एक सदर्न हेमिस्फीयर के बाद सीधा नॉर्थ पोल में जाते हैं, और नॉर्थ पोल का रेफरेंस लेकर फिर आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द स्टडी दैट इज रिलेटेड वेरी क्लियरली टू यूरेशिया. हमने यूरेशिया को थोड़ा सा जानबूझकर डिले कर दिया ताकि एक बेसिक डिमार्केशन हमारे क्लैरिटी में आ जाए, एंड देन वी कैन इजीली गेट ऑन टू द लोकेशनल क्लैरिटी ऑफ इट. चलो, इस मैप को लेने के पीछे एक रीजन है, उसको समझते हैं, एंड देन वी प्रोसीड अप विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स. नाउ कुछ लोकेशंस आपकी क्लैरिटी में आ चुके हैं, कुछ लोकेशंस हमें पढ़ने हैं, तो विल बी टेकिंग देम इनटू आवर स्टडी. अभी जरा ध्यान से देखते हैं. आई जस्ट वांट टू क्रिएट आउट अ क्विक रफ बाउंड्री लाइन. ग्रीनलैंड हम सबको पता है, सो थिकर मार्कर. ग्रीनलैंड, आई एम नॉट गोइंग ऑन विद द एब्सोल्यूट शेप फॉर देम.
ये सारे आपके आर्कटिक आइलैंड्स ऑफ कनाडा है। ये आपको कनाडियन मेनलैंड और अलास्का मेनलैंड दिखाई दे रहा है। वी आर नॉट मच अवेयर ऑफ इट बिकॉज वी आर येट टू डील अप विद यूरेशिया, बट इफ यू कैन सी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया हियर, एंड इफ आई हैव रीच्ड अप इन दिस टेरिटोरियल स्ट्रेच, सारा का सारा रशियन टेरिटरी है। तो ये रशिया यहाँ लिखा हुआ है। आई हैव नॉट लर्नड एशिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा डिमार्केशन के साथ नोटिस करेंगे। When I take up the reference of North Geographical Pole, ये रहा, and I pick up Arctic Ocean, what I have to understand that Arctic Ocean incorporate the territorial stretch of the countries as, मेरे ख्याल से बड़े आराम से आता जाएगा, it is Greenland. Please remind yourself that actually is Denmark. Yes, all of us can see it is Canada, तो दूसरा कंट्री आराम से आ गया। अलास्का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा कंट्री आराम से आ गया। When I take reference of रशिया, चौथा कंट्री आराम से आ गया। अब आपको जज करना है टू डिमार्केटेड लोकेशन जो यहां नहीं दिख रहा। पहले आप मुझे बताओ, ये चार कंट्रीज का लोकेशन विद द शोर लाइन बहुत क्लियरली जस्टिफाई हो गया। अब नोटिस करो द एक्सटेंशंस ऑफ द स्मॉलर आइलैंड। तो ये जो छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं स्वालबर्ड आइलैंड। ये वाला जो आइलैंड है, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में यूरोप में। स्वालबर्ड आइलैंड बेसिकली बिलोंग्स टू नॉर्वे, तो हमने नेक्स्ट कंट्री इंक्लूड कर ली नॉर्वे। एंड इफ यू कैन रिकॉल दैट बिटवीन ग्रीनलैंड देयर वाज द डेनमार्क स्ट्रेट इन्वॉल्विंग आइसलैंड, तो वो इस स्केल पर नहीं आ रहा। आई एम राइटिंग आइसलैंड हियर। Please count the countries that incorporate the territorial boundary of Arctic Ocean. It is Greenland, that is Denmark, it is Canada, it is Alaska, that is United States of America, it is Russia, and very importantly, it is Norway and Iceland also. So when I talk about top of the world, क्योंकि North Polar area पर हो, top of the world, it is bounded by 6 countries. And when I talk about these 6 countries bounding this particular ocean, एंटार्क्टिका का तो सिग्निफिकेंस जा रहा है वाटर रिसोर्स के साथ, आर्कटिक ओशन का सिग्निफिकेंस जा रहा है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ओशन है पोलर रीजन को अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस एग्रेसिव रशियन जियोपॉलिटिकल डोमेन, and added to it you need to understand this as, I'll continue on this, I'll just make my marker thinner and I'll use this space to attempt on some of the important things. जब आप आर्कटिक ओशन की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स प्रूवन एज निकल, आपको पपुआ न्यू गिनिया के साथ समझाया था। ऑयल ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग मेथड से सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं। प्लैटिनम, these are proven, and range of rare earth are proven in Arctic Ocean. And Arctic Ocean, apart from these resources, is identified very clearly to be incorporating geopolitical interest, and this geopolitical interest is added with. तो ये मेरा पहला important domain है जिसको हमें फोकस आउट करना है विद रशियन एम्बिशन। आई हैव इंक्लूडेड सम इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी मैप्स जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा चीज जो आपको जस्टिफाई करना है, आई थिंक दैट इज मेकिंग द थिंग्स मच मोर prominent when it comes on to Arctic Ocean. It is called Arctic amplification. I hope you have heard about it. Arctic amplifications की जो स्टडीज हैं ये प्रूव कर रही हैं कि आर्कटिक ओशन का वार्मिंग अप इफेक्ट जो है वो बहुत फास्ट है, एंड इट इज लीडिंग टू इट्स कंटिन्यूअस रिसीडिंग अप ऑफ द आइस कवर। हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। एंड द claims, counter claims that has been going on with these 6 countries, with the very ambitious Russian Chinese nexus, if I can use that term, is what is making Arctic Ocean much more prominent, will be our focus of the study. अच्छा, आज की क्लास खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे। आप लोग जो बाद में इस वीडियो को देखोगे वो अपने आप को आंसर देना। I have just marked, I have not given you much details of it. I have given you the justification why Arctic Ocean is important in the present purview.
My simple question is, my simple question relates all of us to, we have done that with North America. Where is the location of North Magnetic Pole? अभी साउथ पोल पढ़ के साउथ मैग्नेटिक पोल को डिमार्केट कहा और कहा कि भाई दोनों सिनोनिमस नहीं है। तो नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल तो अभी आपको मार्क करके बताया एकदम सेंटर में। जब आप नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की बात करते हो तो वो कहां गया? बैथरस्ट आइलैंड। बैथरस्ट आइलैंड इज कनाडियन आइलैंड। तो हमने आपको सिर्फ आर्कटिक ओशन से इंट्रोड्यूस कराया है। हम पहले आर्कटिक ओशन को कवर करेंगे। आई थिंक आई विल बी डूइंग इट इन हाफ एन आवर सेशन और सो, एंड देन आई विल टेक यू टू यूरेशिया। अलग अलग से डिवाइड करेंगे। यूरोप में बहुत सारी कंटेम्प्रेरी चीजें हैं, मेजर पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर एंड फ्रेश डेवलपमेंट, सो गोज विद एशिया। सो पर्पसफुली उनको थोड़ा सा डिले आउट। नियर कनाडा काम नहीं करेगा, यू हैव टू टॉक अबाउट बैथरस्ट आइलैंड, इट इज इन कनाडा। ओके, डन फॉर टुडे, रिवाइज, सी यू टुमारो, बाय बाय।